नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में वायरस के खिलाफ 17 जनवरी से तैयारी चल रही है। 4 मार्च तक देश में कोरोना वायरस के 29 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन सभी को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए 15 लैब बनाए गए हैं, जबकि 19 लैब और तैयार किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मंत्रियों का एक ग्रुप भी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सभी संबंधित विभाग कोरोना को लेकर लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy. Honorable Prime Minister is personally monitoring the preparedness and response on a regular basis. Government of India has initiated a series of action to prevent entry of the disease and to contain it. I am daily reviewing the situation. A group of ministers consisting of Minister of External Affairs, Minister of Civil Aviation and Minister of State for Home Affairs, Minister of State for Shipping and Minister of State for Health and Family Welfare, chaired by me, have been constituted to monitor the situation. The group of ministers has met 4 times since its inception on 3rd February 2020. Cabinet Secretary is taking regular reviews with all related ministries of Health, Defence, Ministry of External Affairs, Civil Aviation, Home, Textiles, Pharma, Commerce and other officials, including with State Chief Secretaries. My own ministry is constantly reviewing the evolving scenario. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिस के होना चाहिए और चीफ मेडिकल ऑफिस 6.5 डिस्ट्रिक्ट्स का हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट उनका होना चाहिए 24/7। दूसरा जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की और 2 जगह इस तरह की सुविधा प्राप्त हैं जहां अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है और बाहर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। That our pharmaceutical industry, which is very large, over the years has become dependent on active pharma ingredients and also intermediates on China. Up to 80% of some critical life-saving medicines, including penicillin and ampicillin and other products. And our own domestic capacities have been mothballed. Will the government now consider reactivating, revamping our own domestic production of these APIs? जितने बड़े पैमाने पर सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन पैनिक जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जनता के बीच में। देहातों में कहीं ये इस तरह का नहीं है, सिर्फ शहरी मामलों में कुछ शहरों के अंतर्गत ये है। इसलिए विदेशों से आने जाने वालों पर नज़र रखिए और ये कहीं देहात में जाने वाला नहीं है। हमारी तमाम आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ वगैरह हैं जो सब कोरोना को भगा देंगी।
ज़्यादा लोगों के मन में भय पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोरोना वायरस को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने संबंधित मंत्रियों से सभी सुझावों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने की अपील की। Minister for Health, Minister for Railways, Minister for Civil Aviation, Minister for Ayush and Minister for HRD. Please take note of the suggestion that has been given by the members and then take appropriate action and keep informed the people from time to time. Any other new development can be brought to the notice of the House subsequently, please. We have suggestions from all sides. If any member has got any further suggestion, they can give in writing to me. I will pass it on. My office will pass it on to the concerned ministers. Right. वहीं विपक्ष के गतिरोध के चलते आज एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन में आज लगातार चौथे दिन भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बाधित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कोरोना वायरस पर सदन में दिए गए बयान के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ शोर मचाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति ने विपक्षी दलों के सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। If you don't want question hour which belongs to members, they want to raise questions and get answers. People coming to the well of the house and shouting slogans, not allowing the house to function, depriving the members and also the people of the country to get information on very important issues. This is a members' right. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow. उच्च सदन में एक तरफ विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जाए, वहीं सरकार ने होली के बाद 12 मार्च को इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया है। तो संसद में गतिरोध से नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ा फैसला किया है। उन्होंने लोकसभा से कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित कर दिया है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो स्पीकर की कुर्सी के बेहद करीब आकर नारेबाजी कर रहे थे और पोस्टर दिखा रहे थे। कांग्रेस के जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरिकोस, आर उन्नीथन, मणिकम टैगोर, बेरी बेहनन और गुरजीत सिंह औजला का नाम शामिल है। संसदीय प्रक्रियाओं के नियम 374 के तहत बलपूर्वक कागज छीनने वाले सांसदों का निलंबन किया गया है। माननीय सदस्यगण, आज दोपहर 2 बजे सदन में जब मत संख्या 13 तथा 14 पर चर्चा की शुरुआत हुई, तब कुछ सदस्यों ने सभा की कार्रवाई से संबंधित कागज अध्यक्ष पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछाले गए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है जब अध्यक्ष पीठ के पटल से कार्रवाई से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं और प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों को नामित करती हूं। आज सुबह पीठासीन सभापति भर्तृहरि महताब ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से सदन में कामकाज को बाधित किया जा रहा है, उससे लोकसभा अध्यक्ष दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। दिल्ली के जो रायट हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम चर्चा करना चाहते हैं। तो दिल्ली रायट के बारे में भी चर्चा हो और कोरोना वायरस के भी बारे में चर्चा हो, प्रॉपर नोटिस दिया जाए, उस हिसाब से चर्चा करने के लिए अनुमति हाउस को मिलेगी। मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि स्पीकर यहाँ के कार्रवाई को लेकर काफी दुखी है, पूरा देश दुखी है जिस तरह हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने चेयर को जाइए और अपनी बात क्वेश्चन आवर फंक्शन करने के लिए अलाउ करें। 3/4 of the members want that house should run and the question hour should go on. And the people who from last 70 years, people who are people who are the root for this division in the society, they are the Congress people. And how many days the riot took place during their time, they should understand. Now government
within first 24 hours, whatever action was to be taken, it is taken, and government is ready to discuss on the issue of Delhi unfortunate incident on 11th in this house. इससे पहले दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे के बाद भी सदन में फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा कि देश में अब तक 30 लोगों में इस रोग के लक्षण पाए गए हैं। इनमें से 3 संक्रमित मरीजों का इलाज कराकर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 3,542 लोगों के नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 3,513 में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। जहां तक सैंपल्स का सवाल है, अब तक 3,542 सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं और जैसा आपको बताया गया 29 उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 3,513 नेगेटिव पाए गए हैं और 92 ऐसे सैंपल्स हैं जिन पे काम चल रहा है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली के 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा सरकार ने अस्थायी तौर पर अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। कल से 5वीं तक के सारे स्कूल्स बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। ये डिसीजन लिया है और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कोरोना खतरे के मद्देनजर पड़ोसी देशों से भारत आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की स्थिति की समीक्षा की। गृह सचिव ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्यों के डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। राज्यों ने सूचित किया कि विभिन्न संक्रमण बिंदुओं पर डॉक्टरों द्वारा नियमित जांच की जा रही है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को ग्राम सभाओं के माध्यम से वायरस से संक्रमित होने से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में बताया जा रहा है। गृह सचिव ने सभी अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अपेक्षित परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेल्जियम यात्रा टल गई है। विदेश मंत्रालय ने आज इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री को भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स का दौरा करना था। ब्रसेल्स में 13 मार्च को ये सम्मेलन आयोजित किया जाना था, जो कि रद्द कर दिया गया है। सम्मेलन की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहां तक इंडिया EU समिट का सवाल है, जिसमें प्रधानमंत्री, जैसा आपने बताया, इसमें दोनों देशों का ये मत रहा है कि फिलहाल जो अभी, और वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ का ये मत रहा है कि एक दूसरे के देशों के बीच में अभी ट्रैवल नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उसी मत से डिसाइड किया गया कि इस समिट को रीशेड्यूल किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा निर्धारित तारीख को ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। निर्भया के गुनहगारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। निर्भया के दोषियों पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आज चौथी बार डेथ वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश पर निर्भया के परिजनों ने उम्मीद जताई है कि दोषियों को निर्धारित तारीख पर फांसी दे दी जाएगी। वहीं दोषियों के वकील AP सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 बार डेथ वारंट जारी किए गए थे, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते दोषियों की फांसी टल गई थी। हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है।
हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन ने मुजफ्फरनगर में सरकारी योजनाओं पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले गांव हुसैनपुर बोपाड़ा में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और तालाब को भी देखा। इसके बाद वह बगरा के कृषि विज्ञान केंद्र के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर राज्यपाल ने किसानों के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर गुड़ उत्पादन से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की और किसानों से जैविक खेती को अपनाने का अनुरोध किया। इसके बाद राज्यपाल मुजफ्फरनगर शहर में पहुंची और डाइट परिसर में बने सदर ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उनसे बातचीत की। यहां से वह PW निरीक्षण भवन पर पहुंची। राज्यपाल ने विकास भवन पहुंचकर टीबी से ग्रसित बच्चों को गोद लेने के लिए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आज मुजफ्फरनगर ज़िले में अपनी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का कार्यक्रम था। सबसे पहले बोपाड़ा गांव है, वहां पर गई तो वहां पर स्कूल में बच्चों से मिली, बच्चों से जानकारी की। उसके बाद वहां पर एक तालाब है, उसका तालाब का निरीक्षण किया। उसके पश्चात बगरा में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर अपने कृषकों के लिए उन्होंने अपना मैसेज दिया और वहाँ क्या काम चलता है वो उस पर नज़र की। अब आगे क्या क्या आ रही है, कुछ खामियां, कुछ किस तरह की शिकायत? नहीं, अभी तो ऐसी कोई खामियां तो नहीं है, हम तो सब ठीक हैं। अब विकास भवन में कार्यक्रम है, उसके पश्चात हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। आज ये मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर चुकी और राज्यपाल की महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी आज मुजफ्फरनगर में पहुंची और बहुत सारी संस्थाओं का, जिसमें प्राइमरी विद्यालय, तालाब, बालिका विद्यालय, इसके अतिरिक्त जो हमारा किसान विज्ञान केंद्र है बगरा के अंदर उसका, और यहाँ जो हमारा आवासीय विद्यालय है उसका, और अभी NGO से बात कर रही हैं जो रोटरी, लॉयन, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, अस्पताल जा रही हैं, अस्पताल का निरीक्षण, यानी ऐसा मिलाकर बहुत मॉनिटरी, बहुत बारीकी से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका अनुपालन कितना हो रहा है, कितनी बारीकी से हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन टू मेन बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सबसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझने का काम किया और बहुत संवेदना के साथ माननीय राज्यपाल महोदय ने सबसे बातचीत की। तो निश्चित रूप से ये मुजफ्फरनगर में सौभाग्य है कि जो सामान्य प्रक्रिया राज्यपाल की होती है उससे अलग हट करके चीज़ों को और अधिक कैसे जनता तक शासन की योजनाएँ पहुँचें, ऐसी अध्ययन उनको करने का काम किया और बहुत सुंदर मार्गदर्शन, किसानों की खेती की आय कैसे दोगुनी हो, छात्र हमारे कैसे एंटरप्रेन्योर बने, उसके ऊपर भी संबोधन उन्होंने बगरा के अंदर दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं उनको बधाई देता हूँ। मिर्जापुर पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। नकली और मिलावटी सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। छापामार कार्रवाई से कारीगरों में मचा हड़कंप। बिना लाइसेंस के चल रही थी नमकीन की फैक्ट्री। जी हां, जनपद मिर्जापुर में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बाजार में नकली और मिलावटी सामान के खिलाफ ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के नकैरा में पहुंची टीम ने अवैध रूप से चल रही नमकीन की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान कारीगरों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीम ने नमकीन के 2 नमूने लेकर फैक्ट्री में 69 बोरी नमकीन को सील कर दिया। ये फैक्ट्री सगुन बाहुबली और सगुन सरताज नाम से नमकीन बनाती है। अधिकारी का कहना है कि बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस पहले हमारी छापामारी 28 तारीख से ही शुरू है, जो है 28 से लेके अब तक हम लोग 16 नमूने ले चुके हैं, डिफरेंट खोआ का, दूध का, चपरी का, नमकीन का, कचरी का, इन चीज़ों का। आज हमें थोड़ा कहीं से सूचना मिली कि एक नमकीन फैक्ट्री चल रही है यहाँ, तो इनके यहाँ आया गया और इनका भी देखा गया। इनके यहाँ कुछ कमियाँ पाई गई, उसके लिए तो इनको सुधार नोटिस दिया जाएगा। एक तो इनके पास अभी लाइसेंस इस प्रीमाइसेस का नहीं है,
के लिए भी इनको निर्देशित किया जाएगा, कार्रवाई में डाला जाएगा। उसके साथ इनके 2 ब्रांडों के नमूने लिए गए। अच्छा, किसी ब्रांडेड कंपनी के नाम से एक नमकीन निकाली थी, कौन सी वो कंपनी थी जिस नाम से ये निकाली? ब्रांडेड का नहीं, इनकी अपनी ब्रांड है जो शगुन के नाम से, शगुन और बाहुबली और शगुन का सरताज 2 नाम से ये निकालते हैं। किसी ब्रांडेड कंपनी का ये नहीं था, ऐसा कोई नहीं। कितने माल यहाँ आपने सीज किया है? इनका लगभग 3 लाख का माल सीज है। कितने कुंतल क्या था? इनके 51 बोरी एक ब्रांड का है और 18 बोरी दूसरे ब्रांड। किस संदेह पर सील किए हैं? किस संदेह ये है कि अगर इनका कोई कमी पाई जाएगी वो तो लैब चेक करेगा। जब कमी लैब से हमारी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, रिपोर्ट आ जाएगी तो उनका खोल दिया जाएगा। जनपद में कितनी कार्रवाई की हैं? जनपद में अब तक कुल 16 नमूने किया गया है। इसको लेकर के 18 नमूने। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो रिपोर्ट आने के बाद होता है। वैसे ओवरऑल हमारा पूरे साल का कार्रवाई में आप लगभग हम 179 नमूने ले चुके हैं और उसमें हमारा 71 लोगों पर एडीएम सर के यहाँ जुर्माना किया जा चुका है, मुकदमा किया जा चुका है। और उसके अतिरिक्त जो है एक अनसेफ के केस में न्यायिक न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली के थाना शेरगढ़ में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें थाना प्रभारी ने बताया कि जहां जहां होली जलाई जाती है वहां पानी के 2-2 ड्रम रखवा दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उस पर काबू पाया जा सके। सीओ रामानंद राय, एसडीएम सुधीर कुमार ने बताया कि होली पर कोर्ट के आदेशानुसार डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील की गई कि त्योहार को प्रेम पूर्वक मनाएं। बैठक में गांव से आए प्रधानों और राशन डीलरों से भी कहा गया कि वह अपने अपने गांव और क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे सभी गाँव से प्रधान, कोटेदार एवं शेरगढ़ के अन्य आम निवासी, देखिए हिंदू धर्म में सबसे बड़े 2 त्यौहार माने गए हैं, होली और दीपावली। क्योंकि अभी होली का त्यौहार आ रहा है, इसमें आपको 2 दिन विशेष ध्यान देना है। पहला दिन होलिका दहन का है, दूसरे दिन होली का जुलूस है। शेरगढ़ की अच्छी बात यह है कि त्यौहार रजिस्टर में कहीं कोई ऐसी घटना का विवरण नहीं है कि वहाँ विवाद हुआ हो या किसी को क्षति पहुँची हो या कोई नुकसान पहुँचा हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दूसरा ये है कि त्यौहार तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपसी भाईचारा, आपके घर की शांति और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य है, उसका ध्यान रखना है। मैं देखता हूँ कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो उसको आगे नौकरी में बहुत दिक्कत आती है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, फिर आगे दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। तो एक दिन के आक्रोश में आके, किसी आवेश में आके कुछ गलत कदम ना उठाएं। ये त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। अच्छे से घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, रंग से खेलें, गाने वाने भी बजा लें, डीजे का प्रयोग ना करें। उस दिन कप्तान साहब हमारी मीटिंग ले रहे थे तो ये इनका स्पष्ट निर्देश था कि डीजे ना बजाएं। आपको गाने बजाइए, लेकिन उसकी एक मीडियम आवाज़ में बजाइए, बहुत तेज़ ना बजाएं कि जिसको ना सुनना हो उसको कोई दिक्कत हो। दूसरा ये कि मैं दोनों धर्म के लोगों से ये अपील करता हूँ, हिंदू धर्म से ये अपील करता हूँ कि किसी को प्रदर्शन की तरह ना खेलें, होली को अपना खेलें, आपस में खेलें। और जो हमारे मुसलमान भाइयों उनसे ये करता हूँ कि थोड़ा सा संवेदनशीलता रखें। अगर होली का रंग गिर भी जाता है तो भाई समझ के माफ़ कर दें। दूसरा ये है कि हम आपके पूरे सहयोग में हैं। कहीं यहाँ पे कोई समस्या होती है, किसी की आँख में रंग पड़ जाता है, किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसका पूरा सहयोग करेंगे हम। ज़्यादातर गांव में सीओ साहब और मैं पूरा दिन भ्रमणशील रहेंगे लगातार। हम कोई स्टॉप नहीं लेंगे। उस दिन सुबह से शाम तक हम पूरा गाँव में भ्रमण करेंगे। आपके यहाँ के भी हमने कुछ गाँव चिन्हित कर लिए जहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पर पूरा भ्रमण करेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना वायरस पर तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और सक्रिय उपायों पर चर्चा की गई। राज्यों के साथ मिलकर देश में हर एक जगह सरकारी मदद की पहुंच का दृष्टिकोण अपनाते हुए और अधिक प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया गया। देश के विभिन्न भागों, जिला स्तर तक राज्य सरकारों के सहयोग से उपयुक्त जांच, आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधाओं तेजी से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और श्रम मंत्रालय से भी अपनी सुविधाओं और अस्पतालों का इस्तेमाल करके सहायता मांगी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि लोगों को बड़ी संख्या में एकत्र होने से बचने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग और मंत्रालय इस समय देश में कोई भी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सलाह मशवरा करें।
कोरोना वायरस दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। भारत सरकार इसमें लगातार अग्रसर है और स्वयं प्रधानमंत्री रोज इस विषय में पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, दिशा दिग्दर्शन कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद खास सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी, अस्पतालों में सुविधा समेत अन्य मामलों पर चर्चा हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 5,89,000 यात्रियों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी के आइसोलेशन की सुविधा करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार से बातचीत जारी है, वहां हम अपने वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम वहां पर लैब को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जांच की जाएगी। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जो जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये all flights and everybody will be part of the universal screening. That is one decision. हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से निपटने में तैयारियों को लेकर संसद भवन परिसर में आज स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और आयुष मंत्रालय के सचिवों की बैठक होने वाली है, जिसमें हालात से निपटने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले कल कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी प्रमुख मंत्री भी मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस के 29 मामलों की पुष्टि होने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्कूलों को परामर्श जारी किया है कि वो परिसरों में बड़ी संख्या में छात्रों को एकत्र न होने दें। मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई भी छात्र या स्कूल का कर्मचारी पिछले 28 दिन में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से प्रभावित देश से आया है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उस पर निगरानी रखी जाए और उसे 14 दिन के लिए अलग किया जाए। शिक्षकों से बच्चों में खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों पर नजर रखने और अभिभावकों को तुरंत सूचित करने और जांच कराने के लिए कहने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों से विभिन्न स्थानों पर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर रखने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में मास्क और हैंड सैनिटाइजर ले जाने की इजाजत दी गई है। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि छात्र परीक्षा केंद्रों में फेस मास्क और सैनिटाइजर ले जा सकेंगे। वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा ने बीमा कंपनियों से ऐसी पॉलिसी डिजाइन तैयार करने के लिए कहा है जिनमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। कोरोना को बीमा कवर में शामिल किए जाने का संभवतः ये दुनिया का पहला प्रस्ताव है। कोरोना वायरस की वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। वो इस बार होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक होली समारोह का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा है कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के साथ हम सभी कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने में मदद कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठे होने वाले आयोजनों को कम किया जाए। इस सलाह को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस साल किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। मिर्जापुर में 15 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अष्टभुजा में हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
अधिकारियों ने हेलीपैड पर चल रहे तैयारियों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मिर्जापुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 15 मार्च को संभावित आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली से राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सूचना मिलने पर डीएम, एसपी सहित अधिकारियों ने आज हेलीपैड का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियों को जांचा परखा। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए आ सकते हैं। वह देवराहा बाबा आश्रम भी जाएंगे। डीएम का कहना है कि राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक यात्रा को लेकर प्रोटोकॉल नहीं आया है। ये संभावित जो यात्रा है माननीय राष्ट्रपति महोदय की, ये हमें कल प्राप्त हुआ था और ये 15 तारीख को संभावित यात्रा है। सोनभद्र में एक प्रोग्राम है, उसके बाद यहाँ पर मिर्जापुर में प्रोग्राम है। पहला उनका है विंध्याचल में जो मंदिर है मां विंध्यवासिनी के दर्शन, उसके बाद वो देवराहा बाबा का है और ये 2 प्रोग्राम हैं और इसके बाद वो वापस बनारस जाएंगे। तो अभी सर हेलीपैड वगैरह का आपने निरीक्षण किया है, तैयारी शुरू हो गई है? जी, हमारी तरफ से तैयारी पूरी शुरू हो गई है। 2 जगह हमने हेलीपैड भी चयन कर लिए जहाँ पर बनाने हैं, एक अष्टभुजा में और दूसरा जो हमारा देवराहा बाबा के पास जो जमीन खाली है वहाँ पर बनाया जाएगा। प्रेमी की चाहत में प्रेमिका ने खाया जहर, मौके से प्रेमी सिपाही हुआ फरार। गंभीर हालत में प्रेमिका हॉस्पिटल में हुई भर्ती। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद मऊ की। आपको बता दें कि प्रेमिका प्रीतिपाल थाना रानीपुर क्षेत्र के गांव रानीपुर की रहने वाली है और उसका प्रेमी विपिन भी उसके ही गांव का रहने वाला है। वह महाराजगंज सरपता थाने में तैनात है। विपिन चौहान का गांव की ही एक युवती से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने अपने घर वालों को कोर्ट मैरिज की झूठी खबर दे रखी थी, इसलिए दोनों परिवारों के लोग इस शादी से नाराज थे और विपिन चौहान के परिजन कोर्ट में तलाक कराने के लिए जुगत में लगे हुए थे। तभी वहां विपिन चौहान ने अपनी प्रेमिका को बुलाकर कहा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये जहर खाकर दिखाओ। प्रेमिका ने चूहे मारने की दवा खा ली। जब वह जहर खाकर तड़पने लगी तो प्रेमी विपिन चौहान वहां से भाग गया। कचहरी परिसर में तड़पता देख वहां मौजूद सिपाहियों ने युवती को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। क्या नाम है आपका? प्रीतिपाल। प्रीतिपाल, हाँ। क्यों जहर खाई हैं? वो एक लड़का है विपिन चौहान, उसका नाम, उससे प्यार करते थे। उससे हम पकड़े गए थे थाने में रानीपुर, हमारा शादी हुआ था। फिर कोर्ट मैरिज होने वाला था तो पैसा देकर सुलह कर दिए लोग और हम बोले कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर वो हमको लेकर आया कोर्ट में सुलह करने के लिए। फिर कहा कि हमसे प्यार करती हो तो जहर खा लो, हमको दिया। फिर पानी चलाया, फिर हम खा लिए, भाग गया। तो कहाँ पर जहर खाई हैं? कोर्ट में। कोर्ट में ही जहर खा ली? हाँ। क्यों बोला जहर खाने के लिए प्रेमी? वो छुट्टी छुट्टा करने के लिए बोला था, हम नहीं बोल रहे थे तो बोला है कि प्यार करती हो तो खा लो, तो हम खा लिए। लड़की जहर खा के आई है, उसका इलाज चल रहा है, अभी नियंत्रण में है। कम से कम 48 घंटा का इंतजार है। तो कहाँ से खा का ये सब हमारे नॉलेज में है। जहर खा का आजमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में देवरिया जनपद के किसान हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें अपनी खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल उत्पादन, मृदा परीक्षण, फसल सुरक्षा के उपाय भी बताए। देवरिया के 100 से अधिक जागरूक किसानों का दल आजमगढ़ आया हुआ है। सभी किसानों को कृषि की नई तकनीकी के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्हें फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन, मृदा परीक्षण, वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को नई प्रजातियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, जिससे कि वह अपना उत्पादन और अधिक बढ़ा सके। किसानों के लिए लगे इस मेले का मुख्य उद्देश्य दूसरे जनपदों से आए किसानों को फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन, मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी देना है, जिससे कि वह अपने जनपदों में जाकर इसका प्रयोग करके और अधिक लाभ कमा सकें। कृषि विभाग द्वारा जनपद देवरिया से 100 किसानों का दल
आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ में आया हुआ है। इन किसानों को यहाँ पर जो जनपद में नई तकनीकियों के बारे में इनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे जो साथी वैज्ञानिक हैं अपने विषय में जो पारंगत हैं, जैसे फसल सुरक्षा, फसल उत्पादन, मृदा परीक्षण, अन्य विषयों पर पशुपालन आदि पर इनको विस्तृत जो है लेक्चर के माध्यम से जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो क्रॉप कैफेटेरिया लगा हुआ है उसके माध्यम से जो नई प्रजातियों के बारे में हम इनको जानकारी देंगे। पास में हमारा राजकीय रिसर्च फार्म है, वहाँ पर जो प्रजातियाँ लगी हुई हैं उनका उत्पादन तकनीकी, बीज परीक्षण प्रयोगशाला और साथ ही साथ जनपद में जो हमारा सटियावा में चीनी मिल है वहाँ पर ये जाकर के गन्ने उत्पादन तकनीकी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और हमारे कुछ यहाँ पर अग्रणी किसान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर श्रीनाथ यादव जी के फार्म पर भी ये जाएंगे। वहाँ पर वो किस तरीके से मुर्गी पालन, बर्मी कंपोस्ट, पशुपालन और साथ ही साथ सह फसली मचान पर सब्जी उत्पादन कैसे किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लेकर के ये किसान अपने जिले में, विशेष करके देवरिया जिले से आए हुए हैं, तो अपने देवरिया जिले में जाकर के उस तकनीकों को अपनाएंगे। उससे अपना करके अपनी आय में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ लागत मूल्य जो इनका ज्यादा हो रहा है उस लागत मूल्य को कम करके अपनी आय को दूना करने में सक्षम होंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री का मंशा है। उसी मंशा के अनुरूप इनको तकनीकी हस्तांतरण किया। चीन में कोरोना वायरस से 31 और लोगों की मौत के बाद चीन में मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। हालांकि चीन में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के साथ अब दुनिया का ध्यान दक्षिण कोरिया, इटली और ईरान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन से बाहर 80% नए मामले इन्हीं देशों से हैं। इस बीच इटली में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 107 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इटली में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को 15 मार्च तक बंद कर दिया गया है। यहां कोरोना वायरस के मामले 3000 के पार पहुंच चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस की आशंका के मद्देनजर सऊदी अरब ने उम्रा यात्रा निलंबित कर दी है। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने देश के लोगों को हाथ मिलाना छोड़कर अभिवादन का भारतीय तरीका नमस्ते अपनाने की सलाह दी है। We must stress personal hygiene, the importance of personal hygiene, doing something that is against our character, against human nature, against our nature of people and society, and to avoid shaking hands. And I tell you, just avoid shaking hands as I do. You can try to implement the Indian system of namaste or say another word like shalom, but find a way, any way, to avoid shaking hands. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया जाएगा। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित होगा। विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। The announcement which I had made earlier about amalgamation of public sector banks. In 2017, you had 27 banks. Now there will be 12 banks only. This announcement which we had made sometime in August 2019 involves amalgamating 10 banks into 4. So you have an Oriental Bank of Commerce and United Bank of India getting amalgamated into Punjab National Bank. Then you have Andhra Bank and Corporation Bank getting amalgamated into Union Bank of India. You have Syndicate Bank